Good morning, friends. How are you all? Friends, if you remember the last day, we have learned up to principle of utmost good faith, right? Friends, today we have to learn some new point, that is principle of indemnity. So what we have learned up to here? We have learned the topic define insurance. Then we have learned the principles of insurance. In that we have learned the first is principle of utmost good faith. Principle of utmost good faith. याद है सबको? This one we have learned. We have learned principle of utmost good faith. Right? This topic we have learned. The main objective of the insurance contract is to compensate the loss, not for the profit. It is for the social concept. The basic law of insurance is a social concept. Both the parties should reveal every information. If any party conceals any information, the contract can be banned. Contract बंद हो जाता है. यहाँ तक हमने देखा था. Today we have to learn, friends, principle of indemnity. Now what is that? Now what is principle of indemnity? Indemnity का मतलब होता है if a company pays amount to you, if a company, insurance company pays an amount to you, whatever the residual product is there, it will be taken by the insurance company. It is applicable to general insurance, not to life insurance. ठीक है? Obviously थोड़ा doubt होगा. When we come to the topic, it becomes very clear. देखो क्या लिखा है. Insurance contract is made to compensate for the loss. देखो क्लियर लिखा है. Insurance contract is made to compensate for the loss. Insurance contract is made only to compensate for the loss incurred by the insurer. So the main objective of the insurance is the principle of indemnity. इसलिए बोला है the main objective of the insurance is the principle of indemnity. अब देखते हैं कैसे. This principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insurer in the event of loss incurred. देखो क्या लिखा है. This principle is used to decide. ये principle calculate करके बताता है how much amount is to be paid to the insurer. कितना पैसा उसको देना है. Right? So what we can say, insurance contract is made in order to compensate for the loss. So the main objective of the insurance contract is the principle of indemnity, because this principle decide how much the insurance company will have to pay to the insuree. This principle decide how much amount is paid will have to pay to the insuree, right? In the event of loss. अगर loss हुआ है तो चलो देखते हैं. Any person who has taken an insurance policy can get only compensation for the loss. देखो clear लिखा है. Any person who takes an insurance policy can get compensation for the loss and cannot earn the profit. सिर्फ compensation मिलेगा उसे, profit नहीं मिलेगा. In other words, he cannot get additional amount. दूसरी भाषा में उसे कुछ extra नहीं मिलेगा over and above the loss incurred. It is not applicable to life insurance. तो मैंने अभी आपसे याद है क्या क्या बोला था, तो वापस एक बार. Principle of indemnity. चलो ready? The principle of insurance is done only for the compensation for the loss. So the main principle of the insurance is the principle of indemnity. This principle decides how much amount is to be paid to the insuree at the time of the loss. If any person, देखो क्या लिखा है, any person who takes an insurance policy, any person who takes an insurance policy, he can get only the compensation. He can get only the compensation of loss, but he is not allowed to earn the profit. Profit नहीं earn कर पाएगा. In other words, दूसरी भाषा में, he cannot get any additional amount other than the loss. तो आगे,
इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी, अब देखो ये आपको 3 एग्जाम्पल दे रहे, दे आर गिविंग 3 एग्जाम्पल्स टू यू, इसमें सारी चीज क्लियर होंगे। देखो, इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू, क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी आपको कहा 10 लाख का सामान पड़ा है, आई हैव द 10 lakhs गुड इन माई गोडाउन, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इफ आई हैव 10 lakh गुड्स इन माई गोडाउन, बात सही है। अब आई नो दैट शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे, अच्छे वायरिंग है मेरे, नो प्रॉब्लम, रॉबरी थेफ्ट का भी इश्यू नहीं है, अच्छे वॉचमैन से, नो प्रॉब्लम। तो मैं सोचूंगा व्हाई आई टेक एन इंश्योरेंस ऑफ 10 lakhs, क्योंकि जब 10 lakhs का मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, आई हैव टू पे अराउंड 15-20,000 देना पड़ेगा मुझे। तो मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है, अरे इतना क्यों? तो व्हाई आई कैन टेक 5 lakhs, 5 लाख का ले सकता हूँ। इफ आई टेक 5 lakhs, तो मेरा प्रीमियम भी तो आता हो जाएगा 10 lakhs, 5 lakhs का, सॉरी 5 lakhs का मुझे प्रीमियम भी 10,000 जितना ही आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी भी, अब सपोज अगर नुकसान हो जाता है 10 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख नहीं देगी, कंपनी क्या बोलेगी, सर आपने इंश्योरेंस 5 लाख का दिया है, तो हम आपको 5 लाख ही दे सकते हैं। अब वो अपने डिपेंड सिचुएशन कैसा है वैसे दोनों पार्टीज मैनेज करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू, देखो, if an insurer takes a policy for a product at a lower value than the original value, it is implied that he will proportionally gets a lesser amount and a part of loss will have to be borne by him. उसको भी लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लेना था, 5 लाख का लिया, अगर नुकसान होगा तो। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 से क्लियर होगा, 2 से क्लियर होगा, 3 से क्लियर होगा। देखो, इफ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 lakhs, अगर कोई बंदा 3 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, बट द ओरिजिनल वैल्यू इज 5 lakhs, ध्यान दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रहा है, 3 लाख का ले रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का वैल्यू है 5 लाख। then the event of then in the event of complete loss, पूरा लॉस हो जाता है, पूरा सामान खराब हो जाता है, जल जाता है, अभी बारिश का मौसम है तो सपोज पानी में खराब हो जाता है, द इंश्योरी विल गेट मैक्सिमम ऑफ 3 lakhs। आया समझ में? तो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 3 lakhs, but if the original value of their product is 5 lakhs, then the event of complete loss, the insurer will get the maximum up to 3 lakh, 3 लाख तक ही मिलेगा। आगे, when the value of the product is of 5 lakhs, अब क्या हुआ, कितने का प्रोडक्ट है, 5 लाख का प्रोडक्ट है, when the value of the product is of 5 lakhs, 5 लाख का है, but the insurer has insured it for 3 lakhs, 5 लाख का प्रोडक्ट है और इंश्योरेंस ने कितने का लिया, 3 लाख, ऊपर जैसा ही। एंड इफ द प्रोडक्ट इज पार्शली डैमेज, पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, थोड़ा, विच इज एस्टिमेटेड एट 2 लाख, 2 लाख का खराब हुआ, द इंश्योरी विल गेट ओनली 1,20,000, 1,20,000। अब तुमको कंफ्यूजन है ऐसा कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नोटबुक ले लो, उसमें लिखो 5 lakhs के सामने 3 lakhs, 5 lakhs के सामने 3 लाख, 5 लाख के प्रोडक्ट में 3 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया, अब 2 लाख पे मुझे कंपनी कितना देगी, तो 2 into 3, 6 लाख, 6 divided by 5 करोगे तो यू गेट दिस फिगर 1,20,000। उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट, बोलते हैं हम उसको प्रोपोर्शनेट। तो पहले में समझ में आया क्या हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 3 lakh, product is of 5 lakhs, complete damage, the company will give 3 lakhs. Second में, product is of 5 lakhs, insurance is taken for 3 lakhs, but the damage is of 2 lakhs, तो कितना मिले, 1,20,000। Third one,
अब उसमें पूरा ही लेना है क्योंकि इतना तो पता चल गया नुकसान ही है। 5 lakhs का प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर 5 lakhs, कंप्लीट डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियसली 5 lakhs टू द इंश्योर। 5 लाख का प्रोडक्ट, 5 लाख का इंश्योरेंस, कंप्लीट डैमेज 5 lakhs। तो क्या क्या देखा फ्रेंड्स? 5 लाख का प्रोडक्ट, 3 लाख का इंश्योरेंस, कंप्लीट लॉस पे कितना मिलेगा? 3 lakhs। दूसरा 5 लाख का प्रोडक्ट, 3 लाख का इंश्योरेंस, डैमेज 2 लाख का हुआ तो 1,20,000। 5 लाख का प्रोडक्ट, 5 लाख का इंश्योरेंस, कंप्लीट लॉस 5 लाख मिलेगा। थर्ड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आता है जब टॉपिक पढ़ाता हूं ना, बहुत मजा आता है इसमें। अब ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब मैं किस पे इंश्योरेंस ले सकता हूं? आई कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ माई गुड्स। मैं अपना ले सकता हूं, आई कैन टेक माई पर्सनल इंश्योरेंस। मेरी फैमिली मेंबर्स का मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं, माई पर्सनल प्रॉपर्टी पे ले सकता हूं, व्हीकल पे ले सकता हूं, यानी जो भी मेरा है। आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला? मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे प्रॉपर्टी, मेरे गाड़ी। तो क्या कहना चाहते हैं? आई कैनॉट टेक द इंश्योरेंस ऑफ सम अदर पार्टी। मैं किसी दूसरी पार्टी का नहीं ले सकता हूं। मुझे लग रहा है कि चलो मैं किसी दूसरे का ले लेता हूं इंश्योरेंस। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी रहने से, उसके गाड़ी को नुकसान होने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब ध्यान दे रहे हो? सामने मिस्टर ए एंड बी, तो ए कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ, ए कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट ओनली, while B can take the insurance of B product only। A का ले सकता है और B का ले सकता है, और कोई लोग इसमें बीच में नहीं आ सकते। तो what they want to say, the insuree must have financial interest। देखो क्लियर लिखा है, the insuree must have financial interest in the product insured। the insuree मतलब मैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जैसे कि हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं अपने व्हीकल का। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वो व्हीकल खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, यस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। यानी मुझे अगर किसी सामान का प्रोडक्ट लेना है, मुझे अगर किसी इंश्योरेंस लेना है, तो उससे मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं एग्जांपल एकदम क्लियर करता हूँ। मैंने एक नया मोबाइल लिया, तो कंपनी वाले मुझे पूछ रहे, दुकान वाले पूछ रहे, सर इंश्योरेंस लेना है? मैंने बोला यस, क्यों नहीं लेना है, मैं लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो प्रोडक्ट अगर मेरे हाथ से गिर जाता है या नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो मुझे नुकसान होगा। तो आई टेक अ इंश्योरेंस ऑफ दैट मोबाइल फोन। उसी जगह मेरे दोस्त ने मोबाइल फोन लिया मेरे बाजू में, वो भी मेरे साथ फोन ले रहा है। अब उसका इंश्योरेंस मैं लूं कि वो लेगा? क्योंकि वो नुकसान होने से मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, उसको नुकसान होगा। दैट्स व्हाई ही विल टेक द इंश्योरेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी बोलने का मतलब, व्हाट डज इट मीन? इफ द प्रोडक्ट हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आई विल टेक द इंश्योरेंस ऑफ दैट वन। अगर मेरे को नहीं होगा नुकसान तो मैं नहीं लूंगा। The insuree must have the financial interest in the product insured। Example, the owner of a house has a financial interest in a house। समझ में? ऑनर ऑफ अ हाउस, हम अपना खुद का घर होता है तो कितना संभाल के रखते हैं, अच्छी तरीके से, साफ सफाई, पेंट हो, कोई भी काम अच्छी तरीके से। लेकिन अगर जैसे ही वो घर हम किसी भाड़े वाले को दे देते, भाड़ूत को दे देते, तो हाउ ही टेक केयर? उसका ध्यान अब रहता नहीं है, क्योंकि उसको उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। द ओनर ऑफ अ हाउस हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ हाउस, व्हाइल अ टेनेंट ऑफ अ हाउस, जो भाड़ा लेता है, डज नॉट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसे किसी भी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ व्हाट इज सब्रोगेशन? व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट and if it is fully damaged, and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product ownership will be with the insurance company। अब देखो क्या लिखा है, आपने ध्यान दिया? हमने दो टॉपिक पढ़ा। एक तो इंडेमनिटी का आपको पता चल गया अच्छी तरीके से कि भाई कॉम्पनसेशन देना है, 5 लाख का प्रोडक्ट है,
5 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो कितना लॉस हो, कितना मिलेगा कंप्लीटली लॉस पे? 5 लाख। 5 लाख का प्रोडक्ट है, 3 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो कंप्लीट लॉस पे भी कितना मिलेगा? 3 लाख। समझ में आ रहा है? फिर वापस 5 लाख का प्रोडक्ट है, लिया है 3 लाख का, लेकिन नुकसान हुआ 2 लाख का, तो 1,20,000। वो कैसे आया? मैंने क्या बताया? 5 लाख के सामने 3 लाख और 2 लाख पे हाउ मच? 120 मिलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंने सिंपल लिखा है, द इंश्योरी मस्ट हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। Example, the owner of a house has a financial interest in a house while a tenant does not have the financial interest. अब subrogation क्या मतलब? When a policy is taken for an insurance product, when a policy is taken, क्या लिखा है? When a policy is taken for an insurance product and it is fully damaged, पूरा बर्बाद हो जाता है, and when the insurance company pays the compensation, the fully damaged product ownership will be with the insurance company. यानी अब क्या हुआ? जैसे कि मैंने अपना व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब दुआ करो ना हो, ठीक है, फिर भी हो गया, ऐसा मान के चलते, एक्सीडेंट हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दिए, रिपेयरेबल नहीं था। अब उसका जो स्क्रैप है, जो भंगार है, जो बॉडी है मेरी गाड़ी की, वो किसका हो गया पता है? इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। उस पे अब मेरा कोई हक नहीं है। कैसे? क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है, हमने आपको आपका हर्जाना दे दिया, पैसा दे दिया, क्योंकि कंपनी ये भी नहीं चाहती कि मैं स्क्रैप बेच के उसमें से पैसे कमाऊं। अब वो स्क्रैप किसका हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का। अब इंश्योरेंस कंपनी इसको जो करना है वो करे। आया समझ में? लेकिन ये चीज लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। अब वो क्यों? डेथ हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी बोला ठीक है, मैं आपको जितना आपने इंश्योरेंस रखा है उतना पैसा देता हूं। अब डेड बॉडी हमारा दे, अब डेड बॉडी हमको दे दो, क्या करेंगे डेड बॉडी का? अब वो डेड बॉडी का कोई काम नहीं है, तो वो डेड बॉडी फैमिली वाले को दे देते, ऐसा होता है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? व्हेन द पॉलिसी इज टेकन फॉर द इंश्योरेबल प्रोडक्ट एंड इफ इट इज फुल्ली डैमेज, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, एंड व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी पेज कंपनसेशन, कंपनसेशन देती है फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट का, द ओनरशिप विल बी विद द इंश्योरेंस कंपनी। ओनरशिप किसके हाथ में रहता है? इंश्योरेंस कंपनी। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आया समझ में? तो फ्रेंड्स 4 पॉइंट हमने पढ़े इसके। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टी को रिलेशन अच्छा रखना है, सारी चीजें रिवील करना है, कोई चीज छुपाना नहीं है उसके बारे में। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सेकेंड हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये डिसाइड करता है कितना पैसा हमें देना है, कितना नहीं देना है, ये सब। तीसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मैं उसी का इंश्योरेंस ले सकता हूं जिससे जो नहीं होने से मुझे नुकसान होगा, उसी का मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब जब पॉलिसी ले लिया, राइट, और कंपनी ने मुझे कंपनसेशन दे दिया, तो डैमेज प्रोडक्ट्स का ऑनरशिप किसके पास चला जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट दे वांट टू से, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स का मतलब कितने तरह के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। देखो, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस 2 तरह के हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। ये सब लिखना है आपको, ठीक है, उतना टाइम भी देता हूं मैं आपको, राइट। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस 2 तरह के, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 2 आते हैं। एक हम बोलते हैं होल इंश्योरेंस, कौन सा है? होल लाइफ इंश्योरेंस। और यहां पे एंडोमेंट इंश्योरेंस। नाउ व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस? होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हम बोल सकते हैं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें कुछ क्या बोलते हैं, सेविंग ऐसा कुछ नहीं होता। एंडोमेंट का मतलब उसमें सब आ जाता है। चलो, जनरल इंश्योरेंस की बात हम बाद में करेंगे, तो पहले हम होल लाइफ इंश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं। रेडी? होल लाइफ इंश्योरेंस देखो क्या लिखा है।
हाईलाइट कर रहा हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, when a person who is insured dies, when a person, वो बंदा जो इंश्योरेंस लेता है वो मर जाता है, the insurance company undertake to pay a, undertake उसने वादा किया है ना, undertake to pay a predetermined sum, predetermined या predecided मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ sum as a compensation, जिसको मिलेगा टू द लीगल है, नॉमिनी बोलते हैं ना, ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट इज नोन एज होल लाइफ इंश्योरेंस। तो बहुत सिंपल चीज है और नॉर्मल चीज है। व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस? मैंने इंश्योरेंस लिया, मेरा डेथ हो गया, तो मेरा नॉमिनी मतलब मेरा जो वारिस है, दैट इज माय सन और माय वाइफ और माय डॉटर या मेरे डैड जो भी है, उनको जिसको भी मैंने रखा है उनको मिलेगा वो पैसा। So what they want to say, when a person who is insured dies, the insurance company के ऊपर आ जाता है, insurance company undertakes to pay the predetermined sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance. ठीक है? So what they want to say, whole life insurance, when a person who is insured dies, the insurance company undertakes to pay a predetermined sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement is known as whole life insurance. So what is whole life insurance? When a person who is insured dies, the insurance company undertakes to pay a predetermined sum as a compensation to the legal heir. बस इतना ही है. The insurer, उसके लिए insurer has to pay a periodic premium which is to be paid throughout his life. उसके लिए उसको जिंदगी भर प्रीमियम चुकाना पड़ेगा. अगर उसको अपने फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो उसको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा. लाइफ इज प्रीशियस, हम जानते हैं ये लाइफ का कोई मोल नहीं है, इट्स ऑब्वियसली अनमोल है ना. लाइफ इज प्रीशियस एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड फॉर इट. उसके लिए कोई प्राइस नहीं होता. एंड इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ. इंश्योरी डिसाइड करता है उसके लाइफ का वैल्यू का. एंड इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी टू पे द प्रीमियम. देखो सबके मुकेश धीरूभाई अंबानी का अलग है, अपना अलग है. लाइफ इज प्रीशियस एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी प्री डिसाइडेड फॉर इट. क्लियर लिखा है, लाइफ इज प्रीशियस एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड फॉर इट. कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता. एंड इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू. इंश्योरी डिसाइड करता है उसका वैल्यू क्या है उसके लाइफ का. एंड हिट्स कैपेसिटी टू पे द प्रीमियम. उसकी कैपेसिटी कितना है प्रीमियम भरने का. इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड. देखो क्लियर लिखा है, इंडेमनिटी में क्या होता है, हम बोले थे ना 5 लाख में 3 लाख मिलेगा, उसमें इतना मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं लगता. जितना डिसाइड हुआ उतना एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंश्योरी. इफ द डेथ इज नॉट अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब सुसाइड कर लेना, the insurance company has to give the full amount as per the contract to the heir of this. कोई से भी करो, डेथ होगा उसका तो उसको पैसे देने पड़ेंगे. राइट. तो व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? तो क्या क्या पढ़ा हमने लाइफ इंश्योरेंस में? पहला पढ़ा होल लाइफ इंश्योरेंस. व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड डाइज, द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ predetermined sum as a compensation to the legal heir of the deceased person. The insurance, इसके लिए the insurer has to pay periodic sum to the insurance company throughout his life. अब किसका कितना प्रीमियम है वो कैसे डिसाइड करे भैया? इसलिए बोला है लाइफ इज प्रीशियस. लाइफ प्रीशियस है, इट कैन नॉट बी वैल्यूड. अब सब लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं. एंड insuree decides the value of his life. क्या लिखा है? An insuree decides the value of his life and his capacity
क्या लिखा है? एन इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ and his capacity to pay the premium. In this case, the principle of indemnity, cannot be applied at the time of death of an insured. If the death is not unnatural, अगर death unnatural हो जाता है, the insurance company has to give a full amount. The insurance company has to give the full amount as per the contract to the heir of the deceased. Clear? तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा फर्स्ट वन वी हैव सीन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, याद है? फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा, फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, याद आया? इंडेमनिटी में क्या है? 5 लाख का, 3 लाख को तो अभी आ गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब जिसपे मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है मैं उसी का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा उसी पे ले सकता हूँ। सब्रोगेशन का मतलब जब पॉलिसी का पेमेंट अगर कंपनी कर देती है, कॉम्पनसेशन कर देती है, तो उसके ऊपर अब मेरा हक नहीं रहता, कंपनी का हक हो जाता है, ऑनरशिप उसके पास हो जाता है। फिर हमने देखा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में 2 तरह के इंश्योरेंस है। कौन से बोलो? एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमने 2 देखा, एक है होल लाइफ इंश्योरेंस, प्योर लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा एंडोमेंट इंश्योरेंस। अब देखते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस में हमने क्या पढ़ा। होल लाइफ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा When a person who is insured, जो इंश्योरेंस लेता है, उसका डेथ हो जाता है, the insurance company undertakes to pay a predetermined, ये सब वर्डिंग्स बहुत अलग हैं, इसे आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग नोट्स करने पड़ेंगे, राइट? राइटिंग नोट्स, you have to write it, you have to learn it as per the point wise. Within a week एग्जाम शुरू होने वाला है, okay? When a person who is insured dies, the company undertakes to pay the predetermined sum as a compensation to the legal heir. उसके लिए the insurer has to pay a periodic premium which is to be paid throughout the life. Life is precious. Life is precious. There cannot be any value, but everyone can decide his value, है ना? An insurer decides the value of his life. उसका वैल्यू क्या है लाइफ का, and his capacity to pay the premium. In this case, कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल एट द डेथ। इफ द डेथ इज नॉट अननेचुरल, अननेचुरल से डेथ नहीं होता है, मतलब सुसाइड ऐसा कुछ नहीं करता है, द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे द फुल अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टू द हियर ऑफ द डिसीज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना हमने किया है। नेक्स्ट पीरियड में आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एंडोमेंट इंश्योरेंस किसे कहते हैं, और जनरल इंश्योरेंस, बहुत इजी है, बहुत इजी। जनरल इंश्योरेंस का मतलब लाइफ के अलावा जो भी है उसे हम क्या कहते हैं? जनरल। तो जनरल इंश्योरेंस के बारे में आप थोड़ा रीड करके, मतलब ये पेज पूरा आपको रीड करके रेडी रहना है, ये पेज पूरा आपको रीड करके रेडी रहना है। होप आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, राइट? सो आई थिंक वी विल मीट इन द अगस्त मंथ एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। शायद हमें अगस्त से मौका मिले, हम साथ में बैठे, साथ में पढ़े। डोंट वेस्ट द टाइम, राइट? लाइफ का साइकिल चलता रहेगा, भले कितना भी प्रॉब्लम्स आए, हम उनमें से है जो हार के जीतते हैं, वो भरोसा हमारे पे कायम है, राइट? तो फ्रेंड्स बिल्कुल हार मानना नहीं है, हम उनमें से है जो हार के जीतते हैं, राइट? सो 10th तो हो चुका है हमारे पास, अभी 11th आ चुका है। बेहतरीन तरीके से काम करो, अपना मेहनत से आगे बढ़ो, तभी आपको इसमें मजा आएगा, राइट? हारना नहीं है, झुकना नहीं है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। रोज ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो, अच्छी तरीके से काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर स्टॉपिंग हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।